Hello everyone. I welcome you all once again to my online classes titled Vinay Classes English. For your kind information, this channel is specifically meant for master cadre, I mean the posts which are of specifically of English teacher, assistant professor preliminary exams like HPSC, JKPSC, and more importantly UGC NET, JK set and different examinations associated with subject English like PGT and TGT also. So after a long I'm going to interact with you once again, and before dwelling deep into today's topic, I want to inform you people all that today's video is going to be most beneficial for the people who are preparing for Haryana Public Service Commission assistant professors, Punjab Master Cadre, Subject English, JK set and forthcoming UGC NET examination. So we are going to deal today Indian literature in English in general and more particularly the most frequent asked writer titled as R.K. Narayan, right? R.K. Narayan. So let me start with the brief introduction of R.K. Narayan, probably with the lifespan of Narayan, and the lifespan of Narayan starts from 1906 to 2001. All right. Although lifespan is very less important from examination perspectives, but sometimes it becomes very important as far as the examinations associated with TGT and PGT are concerned. उन एग्जाम्स में कभी कभी the examiner will inquire about the lifespan of the most important writer of any subject, any era, all right? So, R.K. Narayan's lifespan starts from 1906 and he died in the year 2001. The complete name of R.K. Narayan was Rashipuram Krishna Swami Iyer नारायणा स्वामी. यूजीसी नेट के एग्जाम के अंदर फुल नेम नहीं पूछा जाता है, लेकिन मास्टर कार्डर इंग्लिश के अंदर इट्स वेरी मच आस्क्ड. जैसे एम फॉस्टर का कंप्लीट नेम क्या है, टीएस एलियट का कंप्लीट नेम क्या है, so on and so forth. All right. So let me start with the brief introduction of R.K. Narayan. He was an important playwright in English in Indian English literature. All right. And it is believed that R.K. Narayan was a writer who earned the hard-earned money from his writings, right? क्योंकि उस टाइम में राइटिंग उतनी प्रिवेल नहीं करती थी. तो R.K. नारायण की बात करें हम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. द फर्स्ट सेटिंग इज दैट द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट नारायण इज दैट he was a novelist, all right, and he was born in Madras. It becomes very important, the name of place is very important, and generally he was a novelist, but he has also written short stories and he also touched upon the different genres also. Next important statement, R.K. नारायण से important क्या बन जाता है स्टूडेंट्स की, नारायण की सेटिंग को बार बार पूछा जाता है. सेटिंग क्या होता है आप बखूबी जानते हैं कि जहाँ पे नॉवल सेट होती है. फॉर एग्जांपल एक नॉवल हिमाचल में सेट हुई तो हिमाचल का हिस्सा उसकी सेटिंग होगी, एक दिल्ली में हुई तो दिल्ली सेटिंग होगी. तो एज फार एज द सेटिंग ऑफ नारायण's novels are concerned, it's almost a South Indian village titled Malgudi. सो अगर तो सेटिंग से क्वेश्चन आता है तो इट्स मोर इम्पॉर्टेंटली गोइंग टू बी मालगुडी. ऑल राइट. लाइक अगर हम हार्डी की बात करें, हार्डी हैज़ रिटन अराउंड वेसेक्स एंड सर वॉल्टर स्कॉट. ही इज मेनली नोन फॉर वेवरली नॉवेल्स. ऑल राइट.
तो ये फ्रीक्वेंट आस्क्ड फैक्ट है, आपको मालूम होने चाहिए। तो जब भी आर के नारायण से सेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी सवाल आता है तो प्रोबेबली उसकी सेटिंग मालगुडी में होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस फैक्ट वाज आस्क्ड इन लेक्चररशिप एग्जामिनेशन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। वो क्वेश्चन क्या था डियर स्टूडेंट्स की, हु हेल्प्ड आर के नारायण टू पब्लिश his works? So it was Graham Greene. All right. Graham Greene जो था, he is a modern novelist. All right, and he is mainly known for Catholic novels. Okay. So Graham Greene has been considered as a mentor to R.K. Narayan, and he has played an instrumental role as far as the publication of Narayan's novels and works are concerned. All right. Next important fact is sometimes Narayan is compared with William Faulkner. All right. And William Faulkner was also a regional novelist. Narayan is also a regional novelist. Why? Because they made a specific region as the specific setting for their works. All right. So William Faulkner के साथ नारायण को mostly compare किया जाता है, and as you know, William Faulkner is an American playwright, and William Faulkner got Nobel Prize in the year 1949. Very important. एक और important fact William Faulkner से बार बार पूछा जाता है. That fact is associated about one of the best novels written by William Faulkner, that is Sound and Fury. Sound and Fury is basically, students, a novel written by William Faulkner, and it is usually asked in examination that from which work Faulkner has derived the title of Sound and Fury. It's from Macbeth. Macbeth by William Shakespeare. So what's the exact quotation in the text Macbeth written by William Shakespeare? It's, life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. So from this particular statement, William Faulkner has derived the title of his novel Sound and Fury. So let me come to the point. The next important point associated with Narayan is that he was associated with William Faulkner, and William Faulkner is Nobel laureate of the year 1949, and you know, in 1948 who got Nobel Prize? It was T.S. Eliot. All right. Next important fact associated with R.K. Narayan is that R.K. Narayan is mainly known for an autobiographical trilogy. It's not trilogy, it's trilogy. All right. Trilogy मतलब क्या होता है? It's a set of 3 works. So Narayan is mainly known for autobiographical trilogy. So exam में question कैसे बनेगा students की, which among the following novels are included by R.K. Narayan in autobiography, or what's the title of the novels which were included by Narayan in autobiographical trilogy? So first was Swami and Friends, very important. Swami and Friends. Publication date again becomes very important, it's 1935. Next novel is The Bachelor of Arts, I guess. Yes, The Bachelor of Arts. The Bachelor of Arts. Publication date is 1937. And last part was The English Teacher. The English Teacher. Publication date is 1947. All right, 1937, 1945, sorry. The first part, Swami and Friends, carries publication date 1935, then 1937, and last part is 1945. So, isko ratna hai, dear students.
ऑटोबायोग्राफिकल ट्रिलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है. स्वामी एंड फ्रेंड्स इज फर्स्ट पार्ट, द बैचलर ऑफ आर्ट्स इज सेकंड पार्ट, and the English teacher is third part. 1935, 1937 and 1945. Alright, this is the exact chronological sequence of autobiographical novels written by R.K. Narayan. E.M. Foster was very much influenced by R.K. Narayan. As we know, R.K. Narayan was a modern novelist, and E.M. Foster is also a modern novelist. Exact name is Edward Morgan Foster. He was very much influenced by Narayan and vice versa. Narayan was also very much influenced by E.M. Foster, right? And sometimes Narayan has been referred as E.M. Foster of India. E.M. Foster of India. Likewise, Mulk Raj Anand is referred to as Charles Dickens of India. Alright, Charles Dickens of India किसको कहा जाता है? मुल्क राज आनंद को कहा जाता है. और E.M. Foster of India किसको कहा जाता है? नारायण को कहा जाता है. अभी तक जो हमने बातें करी वो मैं रिपीट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स की लाइफ स्पेन ऑफ नारायण इज 1906 to 2001. Rashipuram Krishna Swamy Iyer Narayana Swamy was the exact name of R.K. Narayan. He is a regional novelist and the setting of his novels is Malgudi. Once upon a time there was a question asked in exam that where is Malgudi town situated? In northern part of the India, in southern part of the India, or in northeast? So it is situated in southern part of India. So he is having the setting of his novels around one town. That's why Narayan is called as regional novelist alongside Thomas Hardy, Walter Scott, so on and so forth, which includes William Faulkner also. All right. Whereupon I talked about Graham Greene, and Graham Greene was a modern novelist and he is mainly known for Catholic novels. He was considered as the mentor and he has played an instrumental role as far as the publications of Narayan are concerned. Whereupon I talked about autobiographical trilogy. The first part is Swamy and Friends, publication 1935, then Bachelor of Art 1937, and last part is Bachelor of Arts, which carries publication date as 1945. All right. Now we are going to deal about the main or major works written by R.K. Narayan, which carries the title as literary career. Literary career means उसने जितने भी works लिखे हैं. Excuse me guys. Okay. So major novels जो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उनकी बात यहाँ पे करूँगा. रेस्ट आपको घर पे जाके इंटरनेट पे देख के माइनर मेजर टाइटल्स पेन डाउन करने, बिकॉज समटाइम्स एग्जामिनर आपको टाइटल पूछ देता है और माइनर टाइटल पूछता है. सो लेट मी टॉक अबाउट नॉवेल्स फर्स्ट. आई मीन द फिक्शनल पार्ट ऑफ हिज लिटरेरी करियर. सो फिक्शंस कौन कौन सी नारायण ने लिखी हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे. फर्स्ट इज स्वामी एंड फ्रेंड्स. स्वामी एंड फ्रेंड्स पब्लिकेशन डेट पहले भी बता चुका हूँ 1935 है. देन इट्स Bachelor of Arts, the Bachelor of Arts, it's 1937. Then we are having the Dark Room. Dark Room publication date important नहीं है. The English Teacher, publication date is important, it's 1945. Then we are having Mr. Sampath. Alright, then we are having the Financial Expert, very important. Financial Expert publication date, and the plot line of Financial Expert is very important. The publication date is 1952.
आगे देखते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और कौन सा नॉवल आता है. So the next novel after Financial Expert is The Guide. Very, very important. Publication date is 1958. The Guide को याद रखना डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. First of all, this novel was adapted. Adapted means converted into movie. All right. And who directed this movie? It was a question asked in exam. Who was the director of the movie Guide? तो बता सकते हो आप कौन थे? लेटर ऑन बताता हूँ आपको. इट्स who directed the movie Guide. It is वेट फॉर अ वाइल गाइज, मैं बताता हूँ आपको, देख के बताऊंगा. अब एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल द गाइड से एसोसिएटेड है कि द गाइड नॉवल के लिए नारायण वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड in the year 1960. Year becomes very important. साहित्य अकादमी अवार्ड जो है उसके लिए गाइड को जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ये अवार्ड दिया था. तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि इन विच ईयर नारायण वॉज गिवन साहित्य अकादमी अवार्ड. इट वॉज इन द ईयर 1960. एंड फॉर विच नॉवल इट वॉज गिवन? फॉर द गाइड. ओके. सो गाइड को अडेप्ट भी किया गया है. हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द गाइड फिल्म? इट वॉज गाइड मूवी. इट वॉज विजय आनंद. ऑल राइट. विजय आनंद हैज डायरेक्टेड द मूवी गाइड. ऑल राइट. तो गाइड जो है इसका प्लॉट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. पब्लिकेशन डेट 1958. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 1960 के अंदर सेम नॉवल के लिए नारायण को क्या मिला था डियर स्टूडेंट्स? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था. जैसे कि राजा राव को भी मिला है 1963 के अंदर. किस नॉवल के लिए? सरपेंट एंड द रोप के लिए. इसी तरीके से अरुंधति रॉय को भी 2005 या 6 में मिला है. किसके लिए? द इन्फिनाइट एल्जेब्रा के लिए. ऑलराइट. तो ये मैं बाद में डिटेल आपके साथ डिस्कस करूंगा. नेक्स्ट नॉवल विच कम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आफ्टर द गाइड इज द मैन ईटर ऑफ मालगुडी. द मैन ईटर ऑफ मालगुडी. मैन ईटर ऑफ मालगुडी की पब्लिकेशन डेट और प्लॉट बहुत ज़रूरी है. 1961. और मैन ईटर ऑफ मालगुडी से स्टूडेंट्स देयर वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड दैट विच मिथ इज यूज्ड बाय नारायण इन द नॉवल मैन ईटर ऑफ मालगुडी. इट्स भस्मासुरा. Bhasmasura is myth which was asked in exam and which is being used by Narayan as far as the plot of the man eater of Malgudi is concerned. Next is the vendor of sweets. The vendor of sweets. All right. The vendor of sweets is again an important, novel, and it carries publication date 1967. Then the painter of sign. The painter of sign, again very important. Publication date important नहीं है. Next is a tiger of Malgudi. A tiger of Malgudi. A tiger of Malgudi. Title becomes very important. Next is Talkative Man. Talkative Man is also a novel written by Narayan. Next is The world of Nagaraja. Again it becomes very important. And next is Grandmother's Tale. Grandmother's Tale. All right. So students, this was all about the fictional part which is written by R.K. Narayan. Let me talk about the non-fictional part. अब पहले तो हमने नॉवेल्स की बात करी. अब हम नॉन फिक्शनल पार्ट की बात करेंगे. आई मीन वी आर नाउ गोइंग टू डील विद नॉन फिक्शनल पार्ट ऑफ नारायण. नॉन फिक्शनल वर्क्स, आई मीन एसेज, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, मेमोआ, ये सारे नॉन फिक्शनल होते हैं. फिक्शन नॉवल होता है जो काल्पनिक होता है. नॉन फिक्शन जो काल्पनिक नहीं होता है, जो फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, जिसमें एसे आता है, बायोग्राफी आती है, ऑटोबायोग्राफी आती है, मेमो आते हैं, ट्रैवलॉग्स आते हैं.
सो नॉन फिक्शनल वर्क में फर्स्ट वर्क इज नेक्स्ट संडे। नॉन फिक्शन वर्क्स के अंदर पब्लिकेशन डेट नहीं पूछी जाती, तो याद नहीं रखनी, टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज माई डेटलेस डायरी, माई डेटलेस डायरी। नेक्स्ट नॉवल, आई मीन नॉन फिक्शन essay is My Days, My Days. Next is Reluctant Guru, Reluctant Guru. पब्लिकेशन डेट याद रखने की जरूरत नहीं बच्चों। नेक्स्ट इज द एमराल्ड, द एमराल्ड रूट। नेक्स्ट इज द विंटर्स नाइटमेयर, अ विंटर्स नाइटमेयर। ऑल राइट, so this is, non-fictional part written by R.K. Narayan. Next Sunday, My Dateless Diary, May Days. It's My Days, dear students. It's My Days. Next is Reluctant Guru. Next is Emerald Root. Next is A Winter's Tale. All right. Next part which we are going to deal is, we are going to talk about mythology. Mythology is also part of the literary career of R.K. नारायण। यानी ऐसे कौन से वर्क्स हैं जो R.K. नारायण ने मिथ्स पे बेस्ड लिखे हैं। तो फर्स्ट इज गॉड, डीमंस एंड अदर्स, गॉड्स, डीमंस एंड अदर्स। नेक्स्ट वर्क इज द रामायण, and next one is Mahabharata. महाभारता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि विच अमंग द फॉलोइंग वर्क इज बेस्ड ऑन माइथोलॉजी, इट्स बेस्ड ऑन मिथ। एंड नेक्स्ट पार्ट इज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। तो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन से ज़्यादातर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इज अ हॉर्स एंड टू गोट्स, एंड नेक्स्ट इज अंडर द बनियन ट्री एंड अदर स्टोरीज। नेक्स्ट इज द ग्रैंड मदर्स टेल एंड सेलेक्ट स्टोरीज। ऑल राइट, सो डियर स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस R.K. नारायण's लिटरेरी करियर। अब एक नॉवल जो बहुत फ्रिक्वेंट आस्क्ड है, वो मैंने आपको लिटरेरी करियर में नहीं लिखवाई। वो इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि उस नॉवल को आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दैट इज वेटिंग फॉर महात्मा, वेटिंग फॉर महात्मा। एंड द टाइटल का महात्मा जो है, इट्स महात्मा गांधी। ऑल राइट, पब्लिकेशन डेट ऑफ वेटिंग फॉर महात्मा इज 1955। देखें, अनटचेबल के अंदर भी महात्मा गांधी की बात करी है और वेटिंग फॉर महात्मा के अंदर भी महात्मा गांधी की बात करी। तो वेटिंग फॉर महात्मा इज अ नॉवल रिटन बाय R.K. नारायण एंड इट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट पोलिटिकल वर्क रिटन बाय नारायण, मोस्ट पोलिटिकल वर्क ऑफ नारायण। ऑल राइट, तो क्वेश्चन बन सकता है कि वेटिंग फॉर महात्मा जो है, क्या ये रिलीजियस वर्क है, क्या इकोनॉमिक वर्क है, क्या प्रोटेस्ट नॉवल है, क्या पॉलिटिकल नॉवल है। तो इट्स अ पॉलिटिकल नॉवल। ऑल राइट, ये इंपॉर्टेंट डिटेल है डियर स्टूडेंट्स। इट्स डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। नो नीड टू रिमेंबर इट कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है, नहीं पूछा जाता है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम जो है दैट इज श्री राम। श्री राम इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज भारती। श्री राम जो है, ही स्टांच फॉलोअर ऑफ द फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, राइट। और दिस नॉवल के अंदर जो बात करी है दैट इज ऑफ 1930s डेकेड। सो क्वेश्चन बन सकता है कि नॉवल किस इरा की कहानी बता रहा है। तो ये नॉवल जो है 1930s की बात करता है, जहाँ पे श्री राम जो है वो महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के स्टांच फॉलोअर होते हैं। हिज फादर वॉज अर्लियर एज अ सोल्जर
इन ब्रिटिश आर्मी, राइट। तो उसके कहीं ना कहीं ब्लड में पेट्रियाटिज्म का जो स्पिरिट है वो अवेलेबल है, राइट। इन दिस नॉवल नारायण जो हैं वो श्री राम के कैरेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंटली पोर्ट्रे करते हैं, और श्री राम का इस नॉवल के अंदर 20th बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। देयर इज सेलिब्रेशन ऑफ द 20th बर्थडे ऑफ श्री राम, राइट। तो इम्पॉर्टेंटली ये डेटा आप याद रखेंगे। आगे क्या होता है कि वेटिंग फॉर महात्मा, इट मीन्स कि महात्मा गांधी का किसी गांव के अंदर वेट किया जाता है, राइट। एंड ऑब्वियसली इसकी जो सेटिंग है, द सेटिंग ऑफ दिस नॉवल इज मालगुडी। मालगुडी इज द सेटिंग ऑफ द नॉवल वेटिंग फॉर महात्मा, ऑल राइट। आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, श्री राम जो है ही हर्ड अबाउट द विजिट ऑफ महात्मा गांधी टू मालगुडी। ये सुनता है कि महात्मा गांधी मालगुडी आ रहे हैं और वो वहाँ पे जाके उनको सुनने चला जाता है। अब श्री राम की जो मीटिंग है रास्ते में किसके साथ होती है, भारती के साथ होती है। एंड भारती जो है श्री राम को ज्वाइन करती है और वो दोनों एट द इनिशियल डेज ऑफ गांधीयन मूवमेंट को फॉलो करते हैं, ऑल राइट। और इस नॉवल के अंदर एक स्लोगन है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्विट इंडिया। एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है कि कौन सा स्लोगन जो है नारायण ने अपने वेटिंग फॉर महात्मा के अंदर यूज करा है। इट इज क्विट इंडिया, ऑल राइट। नेक्स्ट एक कैरेक्टर है यहाँ पे जगदीश, एंड जगदीश इज प्रोफेशनली अ फोटोग्राफर। कभी कभी प्रोफेशन भी पूछा जाता है एग्जाम में, इज अ फोटोग्राफर एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ही इज अ टेररिस्ट। ही इज अ टेररिस्ट इन डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब होता है बाहर से कुछ दिखता है और अंदर से कुछ है। सो क्वेश्चन बन सकता है कि जगदीश का प्रोफेशन क्या था एंड जगदीश क्या था, तो ही वॉज अ फोटोग्राफर एंड ही वॉज अ टेररिस्ट इन डिसगाइज। आगे स्टूडेंट्स कहानी में क्या होता है कि श्री राम जो है वो गांधीयन मूवमेंट को फॉलो करता है, ब्रिटिश इरा की बात है, और जो भी उस टाइम में गांधीयन मूवमेंट को फॉलो करते थे ऑब्वियसली दे वर बीइंग अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश आर्मी। तो एक दिन क्या होता है, श्री राम जो है ही विजिट्स हाउस ऑफ हिज ग्रैंड मदर, राइट, और उसके ग्रैंड मदर के हाउस से ब्रिटिश आर्मी इसको अरेस्ट कर देती है एंड श्री राम वॉज प्रिजन्ड, आई मीन इम्प्रिजन्ड। और बाकी का जो नॉवल है वो प्रिजन के अंदर की बात करता है, ऑल राइट। कुछ देर के बाद क्या होता है, 1932 यानी 1930 डेकेड्स की बात हो रही है, और 1947 के अंदर एज वी ऑल नो इंडिपेंडेंस मिल जाती है, और इंडिपेंडेंस के मिलते ही श्री राम को रिलीज किया जाता है इम्प्रिजन से, और वो रिलीज होके जब बाहर आता है मालगुडी लौटता है, और रास्ते में भारती उससे बिछड़ गई है तो ही मेट वंस अगेन भारती के साथ। उसकी मीटिंग कहाँ होती है, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि कहाँ पे, जेल से छूटने के बाद श्री राम जो थे वो भारती को मिले थे, नई दिल्ली में मिले थे। आगे क्या होता है स्टूडेंट्स की, श्री राम और भारती फिर से यूनाइट हो जाते हैं एंड दे प्लान टू मैरी, राइट। और वो मैरिज के लिए आशीर्वाद लेने, बेस्ट विशेस लेने गांधी के पास जाने की सोचते हैं, लेकिन ये उनका ड्रीम डेफर्ड हो जाता है, फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि उससे पहले गांधी जी को शूट किया जाता है। तो यहाँ पे अपना जो है वेटिंग फॉर महात्मा 1955 एंड होता है। ओके गाइज, so guys, this was all about the brief introduction of R.K. Narayan, a most frequent asked writer in each and every exam associated with English literature. ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करी, ग्राहम ग्रीन इम्पॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी अवार्ड इम्पॉर्टेंट है, कब मिला है, किस नॉवल के लिए मिला है, इम्पॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी जो ऑटोबायोग्राफिकल ट्रिलॉजी की है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू लाइक टुडेज क्लास। अगर अच्छी क्लास लगी तो शेयर ना करें, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू शेयर द क्लास, बट खुद पढ़ें और मेहनत करें, आराम करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं,
और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। गुड लक एंड टेक केयर। थैंक यू।